I welcome you all to the neural network class. Last time we have started the topic of sequence models and we talked about different type of sequence problems for which we have to develop sequence models. These problems may range from name entity recognition to music generation to machine translation. Last time we talked why we cannot use fully connected neural network, and then we came to know that there are certain limitations in fully connected network. For example, they cannot support variable length of inputs and outputs. They cannot share feature across different positions, and they have enormous number of weights which can be computationally infeasible to train. So that's why we introduced a different architecture of neural network called a recurrent neural network. A recurrent neural network unfolds in time steps and it processes the sequence uh, in every time t. We introduce some terminology for that, and I hope you know that. I'll just give a brief overview of that. For example, we decided that tx will be our length of input sequence, ty would be length of output sequence, and xi t means we are talking about teeth time step of sequence xi, time step of sequence xi. So we drew the architecture of RNN and we'll start today's discussion from there. So that is a sample RNN, and at time step 1 it will take input of x1, which is the time step 1 of sequence xi. uh, it will also take some prayer activations. I'll talk about it in a moment. And we introduced weights WAX here, WAA here, and WYA here. And we know that at every time step, not only it provides a predicted label Y of 1, it also provides us activation for that, and that activation is fed to the next time step. So if we want to predict the label of next time step x2, it will not only take this input x2, it will also consider this a1 for predicting the label y hat at time step 2, and it will also generate an activation a2 which will fed into the next timestamp. It seems a little bit confusing, but it will come to you in time. जैसे हमने different neural networks पढ़े थे, start में वो मुश्किल लगते थे, तो essentially ये भी आहिस्ता आहिस्ता जब हम इसको बार बार डिस्कस करेंगे तो आपको एक इसकी सेंस बननी स्टार्ट हो जाएगी. सो उसके बाद हमारे पास different time step गुजरते हैं, and then we have the last time step. लास्ट टाइम स्टेप का मतलब है कि ये हमारा जो सीक्वेंस है उसका लास्ट टाइम स्टेप है, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एक्स टी एक्स. ठीक. सो एक्स टी एक्स इनपुट, ए टी एक्स माइनस 1 input, and we get our label y hat at t y. Now you may ask that why I am using tx here and why not tx here.
Since we were talking about name entity recognition problem, in this problem inherently tx is equal to ty, but that is not always be going to the case. We will talk about certain architectures of RNN in which tx is not equal to ty. So that is why we introduced the different terminology for our predicted output. So let's talk about trainable weights. So this is WAX and WAA and WYA. This these weights will be used for all time steps. For example, if I want to govern this X connection, this is used here, as well as this is used here, as well as this is used here, as well as this is used in all intermediate time steps xt, as well as these weights are used here. And I also talked about the naming convention. WAX means this X is part of the input and this A is the output we are getting using these weights. Similarly, now we also have WAA. So this is the input activation of previous time step, and this is the output activation at current time step. And when we talk about WYA, this is the input which is the activation at current time step, and this is the predicted label y hat at current time step. So that is the convention of naming it. So this WAA will govern all calculations of these activities. So it will be used here, will be used here, will be used here, will be used here. And now let's draw our label calculating weights again. So these WYA govern the connection at this point. They actually helps calculate the prediction y hat. So WYA is used here, it is used here, it is used here, it is used in all intermediate time steps, and then it is used here. So that is a brief architecture of our RNN. And let's now talk about the forward propagation or forward pass. So if we want to write the forward pass, or we also call it forward prop, then we can write it for, let's first write it for first time step and then we can generalize it. So if we want to write it for first time step, and now I'll be using blue pen. So we are trying to write the forward pass for first time step. So in this case, we have weights W, A, X, which are being multiplied with input X1, and then we have W, A. These are the weights multiplied by previous activation, and then we have bias term, and then we have an activation function. Usually in RNN's case, this activation is either a tanh or a sigmoid. So it really depends on the problem, but usually this one is tanh. But it can be any activation function we have read so far. I need to erase a few bits. So
This is going to be our activation A1. So this is the first part of forward pass which gives us the activation at time step 1. But we also want to calculate label at first time step. So the label is calculated using this activation, and it can be represented as y1. I'm talking about this y1, and this is calculated as this activation multiplied by these WYA that I introduced earlier, plus there is a bias term here as well. Okay, so there is a bias term, and we also have an activation function. I'll call it G1, G2 to emphasize that these can be different activation functions. This is the forward pass for first time step. But if we want to generalize it, now there is a question कि since this is the first time step, what is this guy? Where does this A0 come from? So essentially this A0 is like the parameter to the network, and this is initialized by a zero vector. Usually it can be initialized. I hope you remember our discussion on logistic regression, in which we used two initialization, a zero initialization and a random initialization. So this A0, different research papers use different A0s, but essentially it's either a random initial activation or it's just a zero vector to kickstart the network. This is not calculated, this is given as input. So let's now write the generic forward pass. I'll try to write it here. Generic forward pass. I'll take your questions after writing the generic forward pass, and I would like to use black pen for that. So if we want to write a generic pass, that is quite simple now. So A T is equal to G1 of WAA of previous activation T minus 1 plus WAX of current input XT plus bias term BA. And now using this activation, we can calculate our prediction YT, which is equal to G2 of WYA into this activation we just calculated plus a bias term BY. So it means when we're talking about this, we know there is a bias term, and when we are talking about this, we know there is also a bias term. So that is the forward pass of a recurrent neural network. Any question till this point, please feel free to ask. हमने ये जो फॉरवर्ड पास की इक्वेशन लिखी है, इसको कुछ बुक्स जो हैं वो थोड़ा सा ज्यादा सिंप्लीफाई भी करती हैं। तो सिंप्लीफाइड नोटेशन का फायदा ये है कि उसमें गलती का चांस जरा कम हो जाता है। तो इसी नोटेशन को मैं दोबारा लिखूंगा और फिर हम इसको देखेंगे कि इसको सिंप्लीफाई कैसे किया जाता है, और उसके बाद फिर हम बैक प्रोपगेशन जो है वो
देखेंगे कि RNN में कैसे होती है. So let's just recreate once again and then we'll simplify this notation. So तो ये हमारी जेनेरिक नोटेशन थी, लेकिन यूजुअली हम ये करते हैं कि हम इन दो WAA और WAX जो है इसे एक सेट ऑफ पैरामीटर्स WA में कंबाइन कर लेते हैं. अब इसको कैसे किया जाता है, इसको आप यूं समझें कि ये एसेंशियली आपको बताया कि ये एक मैट्रिक्स है, ठीक है ना, और ये भी एक मैट्रिक्स है. अब अगर ये मैट्रिक्स है तो इसका मतलब है कि इन मैट्रिक्स को हम वर्टिकली स्टैक कर सकते हैं. सो एसेंशियली हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं WAA और उसके साथ वर्टिकली लिख देते हैं WAX, ठीक है. अब इस सारी चीज को हम नाम देते हैं ये WA का. सिमिलरली जब हमने कैलकुलेशन करनी होती है तो हम ये जो हमारी दूसरी दो टर्म्स थी, ये वाली और ये वाली, इनको हम फिर हॉरिजेंटली स्टैक करते हैं ताकि ये मल्टीप्लिकेशन हो सके. मैं आपको भी जस्टिफाई करता हूँ कि ये मल्टीप्लिकेशन क्यों हो सकती है. सो एसेंशियली ये हमारे पास WA है जिसमें ये दोनों वेट्स जो हैं ये हमने वर्टिकली स्टैक किए हैं, और उसके बाद हमारे पास जो टर्म है AT-1 और XT, इनको हम हॉरिजेंटली स्टैक करेंगे और इसको हम लिखेंगे इस तरह कि जी ये AT-1 और XT है. अब अगर आप इन दोनों एंटिटीज को मल्टीप्लाई करें तो एसेंशियली आपके पास यही चीज वापस आ जाएगी, लेकिन आपकी नोटेशन में से काफी सारी चीजें कम हो जाएंगी. कि अब हमारी जो टाइम स्टेप T की कैलकुलेशन थी उसको हम कम टर्म्स के साथ लिख सकते हैं, एंड दैट वुड बी AT is equal to G1 into WA जो हमने इधर इंट्रोड्यूस करवाया था, ये वाला, मल्टीप्लाइड बाय A of T-1 XT प्लस BA, और आगे ये स्टेप एज इट इज राइट. ओके जी, बैक प्रोपगेशन आपको पता है कि अब ये अगर हम अपनी लास्ट फिगर की तरफ जाएं तो ये तो हमारा फॉरवर्ड पास था, लेकिन हमने आपको पता है कि वेट्स अपडेट भी करने, ठीक है ना. ये सारे वेट्स जो हैं ये हमने अपडेट भी करने हैं, तो इसके लिए हम बैक प्रोपगेशन यूज करते हैं हमेशा से. डिफरेंट न्यूरल नेटवर्क्स में तो हम RNN में भी बैक प्रोपगेशन यूज करते हैं. RNN की जो बैक प्रोपगेशन है उसका एक बड़ा स्पेशल सा नाम है. दैट प्रोपगेशन इज कॉल्ड बैक प्रोपगेशन थ्रू टाइम. इसे ऐसे लगता है जैसे आप टाइम में वापस सफर कर रहे हैं. सो एसेंशियली इट्स नॉट लाइक दैट, लेकिन अब जब मैं अब इंट्रोड्यूस करवाऊंगा तो फिर मैं जस्टिफाई करूंगा कि व्हाई इज इट कॉल्ड बैक प्रोपगेशन थ्रू टाइम. ओके, अब हम अगर अपना नेट बनाए, ये x था, ये मैं नोटेशन बार बार इसलिए बना रहा हूं ताकि आप इससे फेमिलियर हो जाएं. ये इनपुट एट फर्स्ट टाइम स्टेप है. यहाँ आपको पता है हमने एक्टिवेशन एट फर्स्ट टाइम स्टेप कैलकुलेट की. कैसे? क्योंकि इसको इनपुट मिली एक्टिवेशन एट 0 टाइम स्टेप जो कि हमने इनपुट दी थी, और साथ हमारे पास अब वेट्स थे WA एंड BA. ये WA वो नया मैट्रिक्स है जो हमने बनाया है, एंड इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ WAA एंड WAX जो हमने प्रीवियसली कैलकुलेट किया. तो अब मैं WA ही यूज करूंगा. ओके, और साथ हमें पता है कि ये WA जो है ये भी इधर यूज हो रहा है.
इस एक्टिवेशन से फिर हमने जो दूसरा टाइम स्टेप का पास किया था उससे हमने लेबल कैलकुलेट किए थे। जैसे इस जगह का लेबल होगा y1 हैट, ये बताने के लिए कि ये प्रेडिक्टेड लेबल है, एक्चुअल लेबल नहीं है। तो ये हमारा इस टाइम स्टेप का लेबल है। और उसके बाद हम जैसे हमेशा से लॉस कैलकुलेट करते आ रहे थे, हम इस जगह पे लॉस कैलकुलेट करेंगे। ये लॉस कैसे कैलकुलेट करेंगे अभी बस हम डिस्कस करते हैं। सो दैट इज गोइंग टू बी आर लॉस। हम एक दो टाइम स्टेप्स और बना लेते हैं ताकि हम ये बैक प्रोपगेशन इन टाइम जो है इसको प्रिसाइजली देख सकें। सो अब आगे की चीजें आपको पता है कि सिंपली जैसे मैंने ये टाइम स्टेप बनाया है एग्जैक्टली उसी तरह बनाऊंगा मैं। y hat of 2 और y hat of 2 के बाद इधर भी हम लॉस कैलकुलेट करेंगे इस टाइम स्टेप का। फिर हमारे पास होगा टाइम स्टेप 3। ये अच्छा ये 2 है, ये 3, ये x है, ये इनपुट, यहाँ हमारे पास नेक्स्ट प्रेडिक्शन और यहाँ हमारे पास नेक्स्ट लॉस एंड सो ऑन up to the last time step, and I'll call it ATX according to our convention. So this is going to be XTX. This is going to be now y hat of TY, and this is going to be the loss at time step TY. ओके जी, यहाँ तक तो सारी चीजें जो हैं वो हमारी एग्जैक्टली फॉरवर्ड पास वाली। अच्छा, अब हम देखेंगे कि ये वेट्स किधर किधर यूज हो रहे हैं। ये वेट्स आपको पता है इधर यूज हो रहे हैं, उसके बाद ये वेट्स इधर यूज हो रहे हैं, बाद ये वेट्स इधर यूज हो रहे हैं, उसके बाद ये वेट्स इधर यूज हो रहे हैं जितने भी हमारे एक्स टी टाइम स्टेप्स हैं, और उसके बाद ये वेट्स इधर यूज हो रहे हैं। ठीक है जी, तो ये हमारा फॉरवर्ड पास की कैलकुलेशन है। अभी हमारे पास आपको पता है एक दूसरे भी वेट्स या पैरामीटर्स हैं डब्ल्यू वाई और बी वाई। इनको हम देखते हैं कि ये कैलकुलेशन में इधर यूज हो रहे हैं, के बाद ये कैलकुलेशन में इधर यूज हो रहे हैं, फिर ये कैलकुलेशन में इधर यूज हो रहे हैं, फिर ये इंडिविजुअल जो टाइम स्टेप्स इधर गुजर रहे थे उनमें यूज हो रहे हैं, और आखिर में हम ये वाई हैट कैलकुलेट कर रहे हैं। तो ये हमारे पैरामीटर्स हैं जो हमने ट्रेन करने हैं, डब्ल्यू ए बी ए और डब्ल्यू वाई बी वाई। अब हर टाइम स्टेप पे हमारे पास लॉस है, और ये लॉस फंक्शन जो है इसकी जगह हम कोई भी लॉस कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम किसी भी टाइम इंस्टेंस टी का लॉस लिख लेते हैं, एल टी इज कैलकुलेटेड एज वाई हैट ऑफ टी, एक्चुअल लेवल ऑफ टी, और इधर फॉर एग्जांपल हम अपना पुराना लॉस नेगेटिव लॉग लॉस यूज कर लेते हैं। सो नेगेटिव लॉग लॉस जो है ये जिसे आप क्रॉस एंट्रोपी लॉस भी कहते हैं, ये हमने चूंकि काफी ज्यादा पढ़ा है इसलिए मैं इसी को यूज कर लेता हूँ, आपको आइडिया दे देता हूँ। अब आप अज्यूम करें कि ये हर टीथ स्टेप पे ये लॉग लॉस कैलकुलेट हो रहा है, और आखिर में जब ये सारे स्टेप कंप्लीट हो जाएंगे तो ये लॉस सिंपली सारे का सारा ऐड हो जाएगा, और इससे हमें हमारा टोटल लॉस मिलेगा। टोटल लॉस जो है दैट इज y hat एंड y इज इक्वल टू t इज इक्वल टू जितने भी हमारे पास टाइम स्टेप थे आउटपुट के केस में, क्योंकि लॉस जो है वो हमेशा आउटपुट से निकलता है, इसलिए मैं इधर टी एक्स की जगह टी वाई लिख रहा हूँ। लेकिन एसेंशली इस प्रॉब्लम में टी एक्स इज इक्वल टू टी वाई, तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम अपनी कन्वेंशन ठीक रखना चाह रहे हैं। सो दिस इज नाउ, ये जितने भी लॉसेस आपने टी टाइम स्टेप्स पे कैलकुलेट किए थे, अब हम इन सब लॉसेस को सम कर देंगे लाइक दिस। तो
तो अब ये हमारे पास कम्यूटेटिव लॉस आ गया, कंप्लीट लॉस आ गया, ठीक है। अब इस कंप्लीट लॉस की बेस पे आप अपने जो पैरामीटर्स हैं इनको, अब मैं इस फ्लो को मैं ब्लू से दिखाता हूं। तो इस जगह पे अब आपके पास एल वाई हैट है और वाई, तो अब इसकी बेस पे आपको पता है कि ग्रेडियंट्स कैलकुलेट होंगे। ग्रेडियंट्स कैसे कैलकुलेट होंगी? ग्रेडियंट्स, इसकी ग्रेडियंट, फिर इसकी ग्रेडियंट, फिर सिमिलरली इधर से ग्रेडियंट, 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 और सबसे इंपॉर्टेंट इधर को ग्रेडियंट। अब अगर आप इस ब्लू लाइन पे गौर करें तो ये कैलकुलेट कर रही है टी एक्स से प्रीवियस टाइम स्टेप टी एक्स माइनस वन में, फिर उससे प्रीवियस टाइम स्टेप टी एक्स माइनस टू में, फिर उससे प्रीवियस टाइम स्टेप टी एक्स माइनस थ्री। तो असेंशली हम प्रीवियस टाइम स्टेप्स में जा रहे हैं वेट्स को ट्रेन करने के लिए। क्योंकि हम इस केस में बैक प्रोपगेशन में प्रीवियस टाइम स्टेप्स में ग्रेडियंट को कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि ग्रेडियंट इस डायरेक्शन में फ्लो करती है, तो इसलिए हम जो बैक प्रोपगेशन है आर एन एन की, उसको बैक प्रोपगेशन थ्रू टाइम कहते हैं, ठीक है। सो दैट इज व्हाई दिस नेम बैक प्रोपगेशन थ्रू टाइम। अच्छा, इसकी इक्वेशंस और डेरिवेटिव्स जो है वो बहुत ही जरा डरावने किस्म के हैं, तो इसलिए वी विल नॉट टॉक अबाउट दैम। मैं सिर्फ जनरली मैंने आपको आइडिया दे दिया है कि इसकी बैक प्रोपगेशन थ्रू टाइम कैसी होती है। तो इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपका है तो पूछ ले। एसेंशली हमने क्या करना है, बैक प्रोपगेशन की ग्रेडियंट से जब हमारे पास रिलेशनशिप आ जाएगा डब्ल्यू ए बी ए का इससे और डब्ल्यू वाई बी वाई का इससे, तो अब हमें पता है कि इस लॉस में अगर चेंज आती है, यानी इस डब्ल्यू ए में अगर हम यूनिट चेंज करें तो लॉस में, लॉस की डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव डायरेक्शन है या नेगेटिव डायरेक्शन है। तो चूंकि हमने लॉस मिनिमाइज करना होता है, तो अकॉर्डिंगली हम अपने ये वेट्स जो डब्ल्यू ए है इनको ट्यून कर सकते हैं। सिमिलरली बैक प्रोपगेशन थ्रू टाइम जो है उससे हमें ये डब्ल्यू वाई का रिलेशनशिप भी मिल गया। अब हमें पता है कि डब्ल्यू वाई के अंदर अगर यूनिट चेंज करें तो इस लॉस की क्या डायरेक्शन है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो अकॉर्डिंगली जो है हम डब्ल्यू वाई जो है इसको अपडेट करते हैं ताकि ये लॉस जो है ये मिनिमाइज हो जाए। ये वही एग्जैक्टली चीज है जो कंप्यूटेशनल ग्राफ्स में हमने लॉजिस्टिक रिग्रेशन में भी पढ़ी थी, सीएनएन में भी पढ़ी थी, एफसीएन में भी पढ़ी थी। एसेंशियली अब यहाँ क्या होना है, अब यहाँ ग्रेडियंट डिसेंट यूजिंग बैक प्रोपेगेशन होना है और उसके थ्रू हमारे वेट्स जो है वो अपडेट होने हैं इस तरह कि ये लॉस जो है ये मिनिमाइज हो जाए। सो सिंस इसमें ग्रेडियंट्स जो हैं वो प्रीवियस टाइम स्टेप्स में फ्लो करती है, इसलिए इस पर्टिकुलर अरेंजमेंट को हम बैक प्रोपगेशन थ्रू टाइम कहते हैं। बैकवर्ड पास में हम आउटपुट नहीं कैलकुलेट करेंगे, हम ग्रेडियंट्स कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। आउटपुट हम हमेशा फॉरवर्ड पास में कैलकुलेट, जब हमने आप अगर अपने जेहन में लाए ना लॉजिस्टिक रिग्रेशन वाला ग्राफ जो मैंने आपसे बनवाया था जी, 3 into a+bc, तो जब हमने इसका ग्राफ बनाया था तो इसका ग्राफ कैसे बनाया था हमने, हमने पहले b और c हमारे पास इनपुट थी, तो इनको हमने मल्टीप्लाई किया था और इसे हमने u का नाम दिया था, याद है ना आपको ये सर, इनका रिलेशन रिलेशन। निकाला था, बिल्कुल। हाँ जी, तो एग्जैक्टली यही रिलेशन इस ए टी एक्स का ए टी एक्स माइनस वन से नहीं होगा, या इस ठीक हो गया ए सर। थ्री का ए टू से नहीं होगा, प्रीवियस है ना। इसी तरह ए यस सर, टू यस। का ए वन से होगा ना। तो इसलिए मैंने बिल्कुल बताया था सर। कि जैसे हम इधर से ऐसे फ्लो कर रहे थे बैक प्रोपगेशन में, इधर भी हम ऐसे फ्लो कर रहे हैं बैक प्रोपगेशन, ये रिलेशनशिप है। ओके सर। और चूंकि ये प्रीवियस टाइम स्टेप्स हैं, क्योंकि ए थ्री ए टू पे डिपेंडेंट है, ए टू ए वन पे डिपेंडेंट है,
इसलिए हमने इसको बैक प्रोपेगेशन थ्रू टाइम का नाम दिया। कि किसी और बच्चे का कोई क्वेश्चन अगर है तो प्लीज। ओके, अच्छा जी, ये जनरल साहब हमें आइडिया हो गया है कि फॉरवर्ड पास कैसे होता है और बैकवर्ड पास कैसे होता है। अब हम डिफरेंट आरएनएन आर्किटेक्चर जो है वो देख लेते हैं। आरएनएन का अभी तक जो हमने आर्किटेक्चर पढ़ा वो है मैनी टू मैनी, राइट। मैनी टू मैनी का मतलब ये है, ऑल राइट, बल्कि हम इसके लिए ब्लैक पेन यूज करेंगे। मैनी टू मैनी का मतलब ये है कि हमारे पास इनपुट सीक्वेंस जो है उसमें भी बहुत सारे टाइम स्टेप्स है, यानी उसमें मैनी टाइम स्टेप्स है, और हमारे पास जो आउटपुट हमें रिक्वायर्ड है वो भी मैनी टाइम स्टेप्स है। क्योंकि हम बात कर रहे थे नेम्ड एंटिटी रिकग्निशन की, तो हमने देखा था कि नेम एंटिटी रिकग्निशन में एक जुमले में जितने भी नाम हैं हमने उन सब नामों पे लेबल 1 देना था और बाकी पे 0 देना था। तो एसेंशियली दैट वाज अ मैनी टू मैनी प्रॉब्लम। और हमने जो अभी आरएनएन डिस्कस किया है ये भी एक मैनी टू मैनी आर्किटेक्चर है। अच्छा, इस मैनी टू मैनी आर्किटेक्चर की खास बात यह थी कि इसमें tx वाज इक्वल टू ty, लेकिन आरएनएन के और भी बहुत सारे आर्किटेक्चर है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको प्रॉब्लम दूं जी म्यूजिक जनरेशन, म्यूजिक जनरेशन में आपने सिर्फ एक इनिशियल कुछ पैरामीटर्स पास करने होते हैं और उसके बाद आप कोई, जाहिर है आप इनपुट तो नहीं दे सकते। अब आपके न्यूरल नेटवर्क जो है उसने जेनरेटिव मॉडल के तौर पे काम करना है और उसने म्यूजिक जनरेट करना है। तो इसलिए इस किस्म का जो नेटवर्क है उस नेटवर्क को हम कहते हैं कि ये वन टू मैनी नेटवर्क है, ठीक है। वन टू मैनी नेटवर्क, एक मिनट बेटा जरा, सॉरी जी। अच्छा अच्छा, म्यूजिक जनरेशन जो है, अब नाउ दैट इज अ वन टू मैनी प्रॉब्लम, ठीक है, वन टू मैनी प्रॉब्लम। वन टू मैनी प्रॉब्लम का आर्किटेक्चर कैसा होगा, उसके लिए हम एक जो प्रपोज्ड स्कीम हम बना सकते हैं वो ये है कि हम बाकी टाइम स्टेप पे हमारे पास जो इनपुट है, अगर कोई है तो ये इनपुट बाय द वे एम्प्टी सेट भी हो सकती है, यानी कोई इनपुट नहीं है, और इधर हम जीरो एक्टिवेशन दे सकते हैं क्योंकि ये एक जीरो वेक्टर है, इसलिए ये देने में कोई हर्ज नहीं, ये हम दे सकते हैं। लेकिन उसके बाद का आर्किटेक्चर जो है वो अब बिल्कुल डिफरेंट होगा। क्यों? क्योंकि अब इस जगह पे अगर आपके पास वाई हैट आ गया है और इस जगह पे आपके पास एक्टिवेशन आ गई है, तो अब आपके पास इनपुट और कोई नहीं है, इनपुट एक ही थी जो खत्म हो गई। तो अब इस आर्किटेक्चर ने क्या करना है, इसने इसे एज अ फीडबैक लेना है और इसे एज अ फीडबैक लेना है, नेक्स्ट एक्टिवेशन कैलकुलेट करनी है, देन अगेन इसने नेक्स्ट आउटपुट कैलकुलेट करनी है, देन अगेन एंड अप टू जब तक के आपको म्यूजिक जनरेट करना है तब तक आपने ये, अब ये समझे कि ये जो लेबल्स हैं ये एक्चुअली आपका म्यूजिक है जो जनरेट हो रहा है, ठीक है। और इस केस में आप देख सकते हैं tx इज डेफिनेटली नॉट इक्वल टू ty, और इस केस में आप ये भी देख सकते हैं कि हमारा आर्किटेक्चर जो है आरएनएन का अब वो सिग्निफिकेंटली डिफरेंट है उस आर्किटेक्चर से जो हमने नेम्ड एंटिटी रिकग्निशन के लिए पढ़ा। सो दैट इज अ वन टू मैनी आरएनएन। सिमिलरली मैनी टू वन, अगर आपके पास मैनी टू वन आर्किटेक्चर कब यूज होगा, जब फर्ज करें आपके पास प्रॉब्लम जो है वो है सेंटिमेंट क्लासिफिकेशन। सेंटिमेंट क्लासिफिकेशन में यूजुअली हम ये करते हैं कि हमारे पास यूजर के जो फीडबैक है वो एक पैराग्राफ की सूरत में होता है, यानी वो पैराग्राफ में कुछ टाइम स्टेप्स होंगे 10, 15, 20 या 25। लेकिन हम जनरेट सिर्फ ये देखना चाहते हैं कि यूजर का सेंटीमेंट जो है वो 1 स्टार है, 2 स्टार है, 3 स्टार है, 4 स्टार है या 5 स्टार, ठीक है। तो एसेंशियली ये एक क्लासिफिकेशन का प्रॉब्लम बन गया। लेकिन इसमें आउटपुट जो है वो हमें सिर्फ आखिर में एक नंबर चाहिए 0 से लेके 4 तक, कि जी
ये मूवी या तो 0 का मतलब है ये बहुत बुरी चीज मूवी थी या बहुत बुरी प्रोडक्ट थी, 4 का मतलब है कि ये बहुत अच्छी प्रोडक्ट थी, मैं बहुत खुश हूं, ठीक है ना, यही होता है ना सेंटिमेंट क्लासिफिकेशन। तो सेंटिमेंट क्लासिफिकेशन में हम जो RNN यूज करेंगे वो इस आर्किटेक्चर से डेफिनेटली डिफरेंट होगा, क्योंकि ये आर्किटेक्चर था वन टू मैनी, लेकिन अब हम जो आर्किटेक्चर बनाना चाह रहे हैं वो है मैनी टू वन, ठीक है। अब मैनी टू वन आर्किटेक्चर जो है वो कैसे बन सकता है, लेट्स सी। हमारे पास इनपुट्स हर टाइम स्टेप पे मौजूद है, हमारे पास A0 भी मौजूद है, तो इसका मतलब है कि हम ये x1 पास करें, लेकिन हम सिर्फ एक्टिवेशन कैलकुलेट करें, हम y हैट नहीं कैलकुलेट करेंगे। A2 x2 A3 x3, आगे ये t टाइम स्टेप्स हैं, और आखिर में इधर अब हम पास कर रहे हैं tx, और इस जगह पे हमारे पास जो एक्टिवेशन है हम उस एक्टिवेशन को यूज कर सकते हैं y हैट कैलकुलेट करने के लिए, और ये y हैट के साथ आप ty लगाना चाहें तो लगा लें, लेकिन एसेंशियली आपको पता है कि ये एक ही आउटपुट है और ये हमें क्लास देगी जो हम प्रेडिक्ट करना चाहते हैं। सो दैट इज एन आर्किटेक्चर फॉर मैनी टू वन प्रॉब्लम्स। और जैसा कि मैंने एक प्रॉब्लम आपको एग्जांपल के तौर पे बताया कि अगर आपने सेंटिमेंट क्लासिफिकेशन करनी है तो इस किस्म का आर्किटेक्चर जो है वो फिर आप वो यूज करेंगे। अच्छा, अभी हमने मैनी टू मैनी ऐसा आर्किटेक्चर पढ़ा था जिसमें tx वाज इक्वल टू ty, लेकिन हमें ऐसा प्रॉब्लम भी फेस करना पड़ सकता है जिसमें tx इज नॉट इक्वल टू ty। फॉर एग्जांपल tx इज नॉट इक्वल टू ty, जैसा कि मशीन ट्रांसलेशन। मशीन ट्रांसलेशन का मतलब है कि आपने एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में कोई चीज ट्रांसलेट करनी। अब ये जरूरी नहीं है कि अगर पहली लैंग्वेज में 8 टाइम स्टेप्स हैं, यानी पहली लैंग्वेज का सेंटेंस जो है वो 8 वर्ड से बना है, तो उसकी ट्रांसलेशन भी 8 वर्ड से ही बने। जैसे अगर हमने इंग्लिश को अरबी में कन्वर्ट करना है तो अरबी में हो सकता है 2 लफ्जों में जो है वो सेंटेंस रिपीट हो जाए। तो इस केस में हमारे पास ये बिल्कुल जरूरी नहीं होता कि हमारा जो इनपुट सीक्वेंस की लेंथ है वो हमारे आउटपुट सीक्वेंस की लेंथ के बराबर हो। तो इस किस्म के सिनेरियो में जो हमारा आर्किटेक्चर है वो फिर थोड़ा सा अडेप्ट होगा। अब हम क्या करेंगे कि हम अपने आर्किटेक्चर को 2 कंसेप्चुअल पार्ट्स में डिवाइड कर लें। फॉर एग्जांपल ये हमारा इनपुट वाला पार्ट x1 x2, और यहाँ आपको पता है एक्टिवेशंस भी कैलकुलेट हो रही हैं, A0 A1 A2 अप टू XTX, ठीक है। तो ये XTX है। अब इस पॉइंट से हम क्या करेंगे कि हम आउटपुट जनरेट करनी स्टार्ट कर देंगे, यानी कि इस पॉइंट से अब मैं इनपुट नहीं ले रहा, ये जो एक्टिवेशन एट TX है ये मैंने पास की TX+1 को, लेकिन इस जगह पे अब मैंने y हैट 1 कैलकुलेट किया। ये इस ट्रांसलेशन का पहला लफ्ज है, ठीक है, और ये इस ट्रांसलेशन का दूसरा लफ्ज है, एंड अप टू ये इस ट्रांसलेशन का आखिरी लफ्ज है, ठीक है। अब आप नोट करें तो इस पर्टिकुलर सिनेरियो में हमारा जो न्यूरल नेटवर्क है, जो RNN है, उसके 2 कंसेप्चुअल पार्ट्स। ये पार्ट क्या कर रहा है, ये पार्ट कर रहा है इनकोडिंग, तो इसे हम इनकोडर कह सकते हैं, क्योंकि ये अंडरस्टैंड कर रहा है। फॉर एग्जांपल मैंने इंग्लिश टू अरबी ट्रांसलेट करनी है, तो ये इंग्लिश का सेंटेंस अंडरस्टैंड कर रहा है, उसे इनकोड कर रहा है, हैंस द नेम इनकोडर।
ये पार्ट जो है, ये जब इनकोडिंग कंप्लीट हो जाएगी तो ये दूसरी लैंग्वेज में उसे डिकोड कर रहा है, ठीक है ना। जो सेमेंटिक्स हमने अंडरस्टैंड किए थे, मॉडल ने अंडरस्टैंड किए थे, अब वो डिकोड हो रहे हैं। सो दिस पार्ट इज कॉल्ड डिकोडर। तो अब आपका जो मशीन ट्रांसलेशन मॉडल है वो पहले इनकोडिंग करेगा फिर डिकोडिंग करेगा, लेकिन एसेंशियली आप देख सकते हैं इट्स अ मैनी टू मैनी आर्किटेक्चर। लेकिन इस आर्किटेक्चर में Tx is not equal to Ty, ठीक है। सिमिलरली अब चूंकि हम मैन डिफरेंट आर्किटेक्चर्स की बात कर रहे हैं, तो 1-to-1 आर्किटेक्चर भी होता है, लेकिन 1-to-1 आर्किटेक्चर आपको पता है वही सिंपल फुली कनेक्टेड न्यूरल नेटवर्क होता है, इसलिए वो कोई बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं है, इसलिए मैं उसको ड्रॉ भी नहीं करूंगा। तो ये कुछ आर्किटेक्चर्स है जिसमें हम RNNs को यूज कर सकते हैं।